Hello students, this is Tushar Gupta from IMT College of Management, Greater Noida. Today we have to discuss what is Java, what is the feature of Java and how to execute Java program. Now we have to discuss today how to write and compile the Java program. It is important to everyone how to write and where to write and how to execute the Java program. So before proceeding, now first we have to remind the last lecture. In last lecture, we have discussed what is Java. Java is object-oriented, simple, multi-threaded programming language. Now come to the topic how to execute and write the Java program. So first, before starting this, we have to remind this where we write the Java code. We have to write the Java code in the notepad. That code is known as source code. Here I have also mentioned in the diagram, you have to write your source code, that is your Java code, and it will be the extension of your Java file. After that code, you should compile that code, and after the compilation, a new file created. That file will be in the form of bytecode, and the extension of that file is .class file. You have to remember your Java program not directly execute. First, that code is compiled into bytecode, and after the bytecode, with the help of JIT compiler in this diagram, your source code is compiled into bytecode, and after the bytecode, with the help of JVM and JIT compiler, your code is converted into platform specific code. So in last lecture also we have to discuss this, and in this lecture also I remind this. Now we have to come to the next part, that is where to write the Java program and how to execute that Java program. So now this where to write the Java program. We can write the Java program in simple notepad also. मीन्स आप जावा के प्रोग्राम को एक सिंपल नोटपैड पर भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक सिंपल नोटपैड की फाइल है और यहाँ पर मैंने जावा का कोड लिख रखा है। सबसे पहले मैं आपको चीजें स्टार्टिंग करने से पहले आपको चीजें बताना चाहूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि आप तब भी जावा का कोड कोई भी लिखें। वो जावा का कोड लिखने से पहले वो जावा का कोड आप किसी IDE को ही यूज करें। नाउ व्हाट इज IDE? IDE is the integrated development environment where the already predefined features are installed in this IDE. So don't use IDE before when you start to learn the Java. आप IDE बिल्कुल यूज ना करें जब भी आप जावा को पढ़ना स्टार्ट करें। सबसे पहले आप जावा को यदि आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप नोटपैड का ही यूज करें, जैसे कि ये एक नोटपैड है। यहाँ पर मैं आपको चीजें समझाता हुआ चलूंगा। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने से पहले या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को लिखने से पहले उस कोड में यूज करे हुए हर एक कीवर्ड्स का मीन्स हर एक स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने कोड लिख दिया और कोड लिखने के बाद आपने एग्जीक्यूट कर दिया और आपका वर्क कंप्लीट हो गया। नो, यदि आपने कोई भी कोड में कोई भी कीवर्ड लिखा है तो आपको उस कीवर्ड का मीन्स पता होना चाहिए। आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। सो यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ, सबसे पहले यदि मैंने बात करी यहाँ पर कोड, जैसे कि मैं यहाँ पर कोड रफ भी कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने कोड को लिखने के लिए यहाँ पर लिया मैंने क्लास, एंड क्लास नेम शुड बी एनीथिंग। मैंने क्लास नेम ली XYZ। नाउ आफ्टर क्लास नेम I should write here public static void main. I have to change the color of that. I think आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ जिससे कि आप लोगों को अच्छे से विजुलाइज हो चीजें। ठीक है, यस, public static void main, and inside this I pass the string argument. Now curly braces start and curly braces end. Now what is the meaning of these स्ट्रक्चर? मैंने देखिए जब स्टार्ट करा था कल आप जावा के बारे में बताना, तो मैंने बताया था कि
इट इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा क्या है? जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज दैट लैंग्वेज दैट फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ oops. Oops means that have the class like structure, means anything you have to write that will comes inside the class। यानी कि आप जो भी कोड लिखना चाह रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, रिमेंबर कि वो कोड सारा का सारा किसी ना किसी क्लास के अंदर होगा। जो कि मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई है XYZ, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको सारी चीजें समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, ये दिस इज द क्लास, ठीक है। यहाँ पर मैं जाकर कुछ चीजें कर देता हूँ जो कि आपको प्रॉब्लम ना हो। दिस इज द क्लास, ये जो है स्टार्ट करिए क्लास, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, दैट इज द क्लास। तो यहाँ पर सबको समझ में आया कि एवरीथिंग राइट, जो भी आपको कोड लिखना है दैट विल कम्स अंडर द क्लास। वो कोड कहाँ पर होगा? क्लास के अंदर, क्योंकि जावा फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ oops। नाउ everyone knows that compiler search only the main method. When you compile the program, compiler first search the main. You have your main in your program, then compiler jumped into that main. After that compiler execute line by line in the program. So जब भी आप कोई भी प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में लिखते हैं, जावा में, सी में, C++ में, तो आप वहां पर मेन जरूर टाइप करते हैं। तो यहाँ पर भी क्लास प्रोग्राम को लिखने के लिए कंपाइलर सबसे पहले कहाँ आएगा? इस मेन के पास। और इस मेन पर जितने भी हम इसके अंदर जो भी कोड लिखेंगे, कंपाइलर लाइन बाय लाइन वही कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्लास ली XYZ, क्लास के बाद मैंने सिंटैक्स लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मैंने देखिए अभी आज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये बताया था कि मैं कोड में जो भी कीवर्ड लिखूंगा आपको उन कीवर्ड्स का मीन्स पता होना चाहिए। ये नहीं है कि मैंने यहाँ पर बस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख दिया, मेरा काम खत्म, नहीं। या जी जावा का प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखना ही पड़ता है, नहीं। आपको इन कीवर्ड्स का भी मीन्स पता होना चाहिए। तो आइए हम पहले डिस्कस करते हैं इन सारे कीवर्ड्स को। और वो हमारे कीवर्ड्स, सबसे पहले मैंने जो यहाँ पर ये तो है कि हाँ जावा के प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का यूज करना पड़ेगा। लेकिन what is the meaning of public, what is the meaning of static, what is the meaning of void, and what is the meaning of main? Now comes to the first keyword, that is public. Public means access specifier. What is public? Public means access specifier. It is used to set the accessibility. What is public? Public is the access specifier, and what's its use? It is used to set the accessibility. What is the meaning of what is the accessibility? Accessibility is public specifier, not fire, ठीक है। स्पेसिफायर। अब एक्सेसिबिलिटी क्या है, ये आप C++ में भी पढ़ चुके होंगे, क्योंकि दैट इज आल्सो द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पब्लिक मींस इफ द, ये तो मैंने बता दिया आपको डेफिनेशन की, व्हाट इज पब्लिक? पब्लिक इज द कीवर्ड, इट इज ए एक्सेस स्पेसिफायर एंड इट इज यूज्ड टू सेट द एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी मींस if a class is public or if a method is public, you can access that method outside the class also. मीन्स यदि आपकी मेथड कोई भी पब्लिक है तो उस मेथड को आप क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं, या आपका कोई भी क्लास पब्लिक है तो आप उस क्लास को उसकी इनहेरिट क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। अब व्हाट is the access specifier and how many type of access specifier? The type is, what is access specifier? Access specifier is, it is used to set the accessibility of the class. And how many type? It is 3 type. It is number 1 is public. If the method or the class is public, you can access that method outside the class also. And if the class is public, you can access that class, you can inherit that class in its subclass also. Now if the access specifier is private, you cannot access that class. If you have to type the private type of class, then you cannot access that class, या if you cannot inherit that class in another class. यानी कि यदि आप किसी भी क्लास को पब्लिक बनाते हैं तो उस क्लास को आप किसी दूसरी क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते। Now number 3,
प्रोटेक्टेड, यदि आपकी क्लास कोई भी प्रोटेक्टेड है तो आप उसे केवल सब क्लास में ही इनहेरिट कर सकते हैं, या आपका मेथड कोई भी पब्लिक है तो आप उस मेथड को केवल उसकी सब क्लास में ही इनहेरिट कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि ए को आपने बी में तो इनहेरिट कर लिया, लेकिन आप यू कैन नॉट इनहेरिट द ए क्लास मेथड इनटू सी क्लास इफ द मेथड इज प्रोटेक्टेड। You must remember, if in the class A you have to write a method public, you can access that method into B class and C class also. If the method is private in the class A, you cannot access that method into class B. You cannot. And if a method is protected, you can access that method into class B, but cannot in class C. So हमने यहाँ पर सबसे पहले पढ़ा कि what is public access specifier. Now मैंने यहाँ पर second keyword use करा static. Now it is the most important role in the Java program. What is static? First we have to discuss what is static. Static is a keyword. Static क्या है? Static एक keyword है. If the method is static, you no need to create the class object to call that method. Means आपको समझाता हूं, यदि आप किसी भी मेथड को स्टैटिक बनाते हैं, हम प्रैक्टिकली भी ये सारी चीजें जो मैं आज आपको डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि इट इज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग क्लास, ये हम कह सकते हैं कि एक फर्स्ट प्रोग्रामिंग क्लास है। जब हम इसे कंपाइल करेंगे मैं सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा, लेकिन आज सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं और आपको ये चीजें रिमाइंड रखनी है या कहीं भी नोटबुक पर राइट करके अपने पास रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले सेकंड स्टैटिक। स्टैटिक क्या है? एक कीवर्ड, और मैंने बताया इफ द मेथड इज स्टैटिक नो नीड टू क्रिएट द क्लास ऑब्जेक्ट टू कॉल दैट मेथड। यानी कि यदि आप किसी भी मेथड को स्टैटिक बनाते हैं तो उस मेथड को कॉल करने के लिए आपको क्लास ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। And main always static in the Java program. Also remember that in Java program main always static. Java program में main जो होता है वो always क्या होता है? Static. So यहाँ पे बताया मैंने क्या कि यदि आपका मेथड static है तो आपको उस मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। इफ द मेथड इज नॉन स्टैटिक, यदि आपका मेथड नॉन स्टैटिक है, सो यू नीड टू क्रिएट ए क्लास ऑब्जेक्ट टू कॉल दैट मेथड। ऑल्सो रिमेंबर दैट यदि आपने कोई भी मेथड क्लास के अंदर नॉन स्टैटिक बनाया है तो आपको उस मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। यू नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट टू कॉल दैट मेथड, अदरवाइज दैट मेथड कैन नॉट एग्जीक्यूट, वो मेथड एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। So also remember that. So यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे हमने भी मीन समझा कि public, what is the meaning of public and what is the meaning of static. Now one more thing about the static, एक चीज और static से, your variable also be a static. मैंने यहाँ लिखा static int a, and also remember Java is a case sensitive language, and also remember that if I use the small letter then इट शुड बी स्मॉल। ये नहीं है कि मैंने यहाँ यूज कर रखा है स्मॉल और आप एस लिख दें कैपिटल, नो। जावा इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, स्मॉल है तो स्मॉल होगा, ठीक है। जहां पर भी कैपिटल, यहाँ पर स्ट्रिंग इज ए क्लास, जो यहाँ कैपिटल लेटर है तो कैपिटल ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा? स्टैटिक इंट ए। नाउ वन मोर थिंग, इफ ए वेरिएबल इज स्टैटिक इन द जावा, इफ ए वेरिएबल इज स्टैटिक देन नो नीड टू create the object to call that variable in the Java program. And if the variable is non-static, you need to create the object to call that variable. Also remember, यदि वेरिएबल स्टैटिक है तो आपको उस वेरिएबल को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यदि आपका वेरिएबल नॉन स्टैटिक है तो आपको उस वेरिएबल को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्टैटिक से रिलेटेड दो चीजें अभी तक जानी। नाउ नंबर थर्ड, व्हाट इज वॉइड? void means no value return. यदि void is the return time, it means no value return. void क्या है? void एक return type है, और इसका मतलब क्या होता है? इसका means होता है no value return, मतलब कि आपका जावा प्रोग्राम कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। एंड नंबर 4, main means is the entry point. Entry point means compiler only when you compile your program, compiler search only main.
if in your program you have to write the main, then compiler search that main and execute and compile that program from that main. So main is the entry point. You have to necessary to write these 4 keywords to execute or write compile the Java program. तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि सबसे पहले क्लास लाइक स्ट्रक्चर होगा ही होगा, एंड क्लास लाइक स्ट्रक्चर में सबसे पहले मेन, और मेन का भी जो फॉर्मेट होगा वो हमें क्या लिखना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मैंने यहाँ पर सबका मीनिंग समझाया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉइड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेन। यानी कि सबसे पहले जब मैंने आज की क्लास स्टार्ट करी तो मैंने आपको बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर एक वर्ड का मीनिंग होता है। ये नहीं कि हमने बस वर्ड लिख दिया और काम खत्म और प्रोग्राम कंपाइल एग्जीक्यूट, नो, हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, जिससे कि आपको चीजें अच्छी भी लगेंगी सीखना और आपके लिए इजी भी होगा। एंड हियर आल्सो आई हैव टू राइट द एरे ऑफ आर्गुमेंट। स्ट्रिंग में का मैंने एक एरे लिया है आर्गुमेंट टाइप, मींस जावा सपोर्ट्स द बाइट कोड। जावा किसे सपोर्ट करता है, बाइट कोड को। एंड व्हेन यू कंपाइल योर प्रोग्राम इट विल कन्वर्ट इनटू बाइट कोड विद द हेल्प ऑफ दैट string, array of string, and it is also known as, it is also used for command line argument. What is command line argument? When we pass the value from the command prompt at the runtime, then we will use the command line argument. ये हम practically जब करेंगे आपको चीजें पता लगेगा कि actual में how the use of and what the use of this array of argument। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सबसे पहले जावा के प्रोग्राम को लिखने से पहले मैं बार बार आपसे यही बात बोल रहा हूँ कि सबसे पहले क्लास लाइक स्ट्रक्चर होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमें लिखना ही पड़ेगा और एरे स्ट्रिंग एरे लेना ही पड़ेगा। ठीक है, नाउ आपका यहाँ से हमारा जो भी आपको कोड लिखना है यहाँ पर आप कोड लिख सकते हैं। जैसे कि सपोज सबसे पहले हम बात करते हैं कि राइट योर नेम इन योर जावा प्रोग्राम। आपको नेम लिखना है जावा के प्रोग्राम में, तो आप किस तरीके से अपना नाम प्रिंट करेंगे। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ लिखा माई नेम इज XYZ। सो अब यहाँ पर फिर दोबारा वही बात आती है कि यहाँ पर अब यहाँ आपने जावा से पहले C या C++ ही पढ़ा होगा, और C++ में डायरेक्ट मेन वॉइड मेन होता है, और वॉइड मेन में प्रिंट कराने के लिए हम या तो प्रिंट एफ का यूज करते हैं या सी आउट का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंटैक्स फिर चेंज हो जाता है, यहाँ प्रिंट कराने के लिए पूरा ही सिंटैक्स लिखना पड़ता है system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। नाउ फिर वही बात आती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंटलन। यानी कि यहाँ पर सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंटलन क्या है। नाउ सिस्टम इज द क्लास एंड दिस टाइप ऑफ क्लास इट इज द प्री डिफाइंड क्लास। सिस्टम क्या है, सिस्टम एक प्री डिफाइंड क्लास है एंड दैट क्लास कंटेन्स द प्री डिफाइंड मेथड्स। और इस क्लास के अंदर बहुत सारे प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं। जैसे कि यदि मैं जावा के C या C++ की हायरार्की की बात करूं तो C++ की हायरार्की क्या होती है, हेडर फाइल्स होती हैं एंड हेडर फाइल्स में प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं। यहाँ पर क्लास होती है, क्लास में प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं, और क्लास भी होती है प्री डिफाइंड पैकेजेस के अंदर। यानी कि यहाँ पर एक टॉप लेवल पर क्या आ जाता है, पैकेज। यानी कि यहाँ पर मैं यदि आपको बताऊं, यदि मैं इसकी हायरार्की आपको समझाऊं तो नंबर वन पैकेज, इनसाइड द पैकेज के अंदर होगा क्लासेस एंड इनसाइड द क्लास मेथड्स। इट इज द हायरार्की ऑफ जावा। यहाँ पर प्री डिफाइंड पैकेजेस होंगे, इन प्री डिफाइंड पैकेजेस के अंदर प्री डिफाइंड क्लासेस होंगी और प्री डिफाइंड क्लासेस के अंदर प्री डिफाइंड मेथड्स होंगे। जैसे कि यदि मैं C या C++ की बात करूं वहां पर हायरार्की क्या होती थी कि हेडर फाइल्स एंड हेडर फाइल्स के अंदर ओनली मेथड्स। सो हियर इज द हायरार्की ऑफ, आप रिमेंबर ये बात भी बहुत ध्यान रखने की है, बिल्कुल बेसिक्स है अभी कि किस तरीके से जावा की हायरार्की होती है। तो यहाँ पर व्हाट इज सिस्टम, सिस्टम इज द predefined class and always remember that predefined class first letter must be capital।
all the predefined classes first letter must be capital। यानी कि मैंने क्या बोला कि जितनी भी predefined classes होती हैं उनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, जो कि यहाँ पर मैंने सिस्टम का फर्स्ट लेटर क्या लिखा है, कैपिटल। Now what is println? Println is the method and it is used to print any string with line। यानी कि इसका यूज हम किस लिए करते हैं कि आप विद नेक्स्ट लाइन, नॉट लाइन, विद नेक्स्ट लाइन, कि आप हम किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकें और कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन पर पहुंच जाए। ठीक है, तो हमारे प्रिंट के और भी मेथड्स होते हैं। प्रिंट के हमारे यहाँ पर प्रिंट एफ भी मेथड होता है, प्रिंट का हमारा सिंपल प्रिंट भी मेथड होता है। You can also write system.out.print, you can also write system.out.print f and you can also write system.out.println। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, system is the class, println is the predefined method and out is the object that is used to access that println method from the predefined system class। यानी कि out, what is out? Out is the object that is used to access that println method from the predefined system class। यानी कि println method को जो एक्सेस करके ला रहा है, ये out नाम का ऑब्जेक्ट एक्सेस करके ला रहा है सिस्टम क्लास से। तो यहाँ पर हमने मीन समझा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ println। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमने किस की यहाँ पर सिस्टम का क्या मीनिंग है, आउट का क्या मीनिंग है, प्रिंटलन के क्या यूज है, पब्लिक का क्या मीन्स है, स्टैटिक का क्या मीन्स है, वॉइड का क्या मीन्स है, मेन का क्या मीन्स है, और व्हाट इज द हायरार्की ऑफ जावा, कि क्या है, किस तरीके से हायरार्की होती है, कि मेथड्स कहाँ पर होते हैं एंड मेथड्स क्लास में होते हैं, फिर क्लासेस कहाँ होती हैं प्रीडिफाइंड पैकेज में, पैकेजेस कहाँ होते हैं जावा जेडीके टूल किट्स में। ठीक है, हमने ये चीज देखी। नाउ अब हमने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर मैंने डबल कोट्स लाइक एज सी, हमें कुछ भी स्ट्रिंग प्रिंट करनी हो तो हम डबल कोट्स का यूज करेंगे, वही मैंने करा यहाँ पर, और मैंने कोड को यहाँ पर क्या कर दिया, डबल कोट्स क्लोज देन सेमीकोलन क्लोज, उसके बाद मेन मेथड क्लोज करा और क्लास क्लोज करी। ठीक है, अब यू मस्ट रिमेंबर, अब हमें अब जावा का कोड सेव कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको जावा का कोड सेव करना है, तो वो आप कैसे सेव करेंगे मैं आपको बता देता हूं। सेव, सबसे पहले तो हम देखिए ये बताते हैं कि जिस नाम की से आपने क्लास बनाई है, आप कोशिश करिए कि उसी नाम से अपने जावा के कोड को सेव करिए। यदि आप नहीं करते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कोशिश करिए कि जिस नाम से आपकी क्लास है उसी नाम से जावा के कोड को सेव करें। जैसे कि यहाँ पर मेरी क्लास क्या है, हियर इज द क्लास xyz, तो मैंने कोड सेव करा xyz डॉट जावा। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या सेव करा, xyz डॉट जावा। आपने जैसे ही सेव कर दिया, अब यहाँ पर आप कहेंगे कि सर आपने डबल कोट्स का क्यों यूज करा है। द यूज ऑफ डबल कोट्स इज इफ when you use a double quotes and type the extension name inside the double quotes, 100% your file will save on that extension। यानी कि यदि हम डबल कोट्स में कोई फाइल लिखते हैं विद उस फाइल टाइप, तो वो फाइल उसी एक्सटेंशन में ही सेव होगी। तो जब आप इस फाइल को देखेंगे तो ये जावा फाइल ही सेव होगी। लेकिन आप डायरेक्ट लिख देते हैं xyz.java, तो बहुत बार क्या होता है वो टेक्स्ट फाइल सेव हो जाती है। तो इसलिए हम जावा के कोड को डबल कोट्स में टाइप करके सेव कर देते हैं। अब how to compile? Now open the command prompt. In command prompt type the command। पहले तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट को उस फोल्डर के पाथ तक लेकर जाना है जहां पर आपका जावा का कोड सेव है। ध्यान देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, आपके फोल्डर के पाथ को उस फोल्डर, कमांड प्रॉम्प्ट के पाथ को उस फोल्डर तक लेकर जाना है जहां पर आपका प्रोग्राम सेव है। फॉर एग्जांपल आपका प्रोग्राम सेव है डी ड्राइव में और फोल्डर लिख लेते हैं जावा नाम के फोल्डर में, और आपका प्रोग्राम सेव है xyz.java। यहाँ पे मैंने पूरी हायरार्की बनाई है। तो सबसे पहले आपको cd और d कॉलन लिखना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट में। cd का यूज क्या है, चेंज डायरेक्टरी, cd d कॉलन एंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में डी ड्राइव में आ जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर आपको लिखना पड़ेगा cd और जावा, यानी कुल मिला के आपको किस पाथ पर आ जाना है, d कॉलन जावा।
आपका ऐसा कमांड प्रॉम्प्ट में जब भी ऐसा बना हुआ आ जाए, यानी कि आपका प्रोग्राम कहाँ सेव है, डी ड्राइव में जावा नाम के फोल्डर में। रिमेंबर दैट योर प्रोग्राम इज सेव इनसाइड द डी ड्राइव इन जावा फोल्डर। अब आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे सबसे पहले कहाँ पहुंचना है, आपने कमांड पढ़ भी रखी होंगी, नहीं पढ़ी है तो आपको जरूर उन कमांड्स को कुछ देखना चाहिए, बेसिक कमांड्स जो होती हैं, ठीक है, चेंज डायरेक्टरी वगैरह। तो आपने डायरेक्टरी चेंज करी और उस पाथ पर पहुंच गए जहां पर आपका जावा का प्रोग्राम सेव है। नाउ अब आपको कमांड कंपाइल करने की, हमने क्या कहा था कि जावा का सबसे पहले क्या होता है, प्रोग्राम कंपाइल। तो आपको कंपाइल करने के लिए कमांड चलानी पड़ेगी जावा सी हाइफन और जावा सी स्पेस क्लास नेम डॉट जावा। जैसे ही आप ये कमांड टाइप करेंगे और XYZ, ठीक है, और एंटर करेंगे, एंटर xyz.java, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं। और आप जैसे ही एंटर करेंगे तो क्या होगा, आपको इस तरीके से कमांड प्रॉम्प्ट में यदि इस तरीके से दोबारी लाइन लिखकर आएगी तो आप सोचिएगा कि आपका प्रोग्राम बिल्कुल ठीक कंपाइल हो चुका है। और आप देखेंगे कि उस फोल्डर में जहां पर आपको xyz.java नाम का प्रोग्राम सेव है, वहां पर एक और फाइल क्रिएट हो गई होगी, जो कि मैंने आज ही स्टार्टिंग में बनाया था कि जैसे ही आप जावा का प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तो सबसे पहले एक नई फाइल क्रिएट होती है जो किस फॉर्म में होती है, दैट इज द डॉट क्लास फाइल, और जो कि बाइट कोड के फॉर्म में होती है, तो वो एक फाइल क्रिएट होकर आ गई होगी यदि आपका प्रोग्राम कंपाइल हुआ है। इसके बाद जैसे ही आपका प्रोग्राम कंपाइल हुआ है, आप नेक्स्ट कमांड लिखेंगे उस कंपाइल्ड फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए। और कंपाइल फाइल का जो नाम होगा, आप ध्यान रखिए कि जिस नाम से क्लास होगी उसी नाम से कंपाइल्ड फाइल का नेम होगा, ध्यान रखिएगा ये बात। यदि आपने नाम यहाँ पर और कुछ लिख रखा है और प्रोग्राम सेव करा है XYZ से, तो कंपाइल XYZ से होगा, लेकिन रन उस क्लास से होगा जो क्लास बनी हुई है। तो यहाँ पर तो क्लास आपने XYZ बनाई है तो कंपाइल भी XYZ से होगा, और रन जैसे जो क्लास फाइल भी जो बनकर आई होगी वो XYZ डॉट नाम की आई होगी, जावा स्पेस XYZ। और जैसे ही आप ये कमांड एंटर करेंगे, और देखिए यहाँ पर मैंने स्मॉल लेटर लिख दिया, मैंने क्या कहा था कि जावा इज द केस सेंसिटिव, कैपिटल ही लिखना पड़ेगा क्योंकि योर क्लास नेम इज कैपिटल। तो जावा स्पेस है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, ये देखिए स्पेस है XYZ। जैसे ही एंटर करेंगे आउटपुट आ जाएगा वहीं कमांड प्रॉम्प्ट पर, माई नेम इज XYZ, ठीक है। तो आज हमने समझा कि किस तरीके से हम एक जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे और कंपाइल। सबसे पहले मैंने बताया कि आपको क्लास लाइक स्ट्रक्चर होगा, मेन आपको लिखना ही पड़ेगा। मेन में मैंने हर एक कीवर्ड्स का मीनिंग बताया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉइड एंड मेन। फिर मैंने प्रिंट करने के लिए आपको बताया कि यू हैव टू राइट द system.out.println, इनका भी मीन्स बताया लाइक एस सी और C++। आप कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करनी है आप डबल कोट्स में वो स्ट्रिंग लिख सकते हैं। मेन क्लोज करा एंड क्लास क्लोज करी। और यहाँ पर मैंने आपको पूरा समझाया कि जावा की हायरार्की, सपोज डी ड्राइव में जावा नाम के फोल्डर में प्रोग्राम हमने सेव करा xyz.java से, तो सबसे पहले हमें कमांड प्रॉम्प्ट में उस पाथ पर जाना पड़ेगा, d:जावा, इस पाथ पर पहुंच गए और मुझे कमांड चलानी पड़ेगी जावा सी xy.java। यदि हमारा जैसे ही हम एंटर करेंगे और यदि ये d:जावा लिखकर आता है तो आप सोचिएगा प्रोग्राम आपका ठीक कंपाइल हुआ है। आप फोल्डर में जाकर देख सकते हैं एक और फाइल क्रिएट हो गई होगी, और फिर आपको उस कंपाइलेशन फाइल को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा जावा स्पेस XYZ। जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपका नेम जो भी आपने डबल कोट्स में या स्ट्रिंग प्रिंट मेथड में स्ट्रिंग दी हुई होगी वो टाइप होकर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अब एक और बात हम कर सकते हैं। एक बात क्या कि स्टाइल, प्रिंटिंग स्टाइल, प्रिंट स्टाइल, यहाँ पर एक ये सिंपल जावा स्टाइल है प्रिंट करने की। अब प्रिंट करने की भी एक और स्टाइल होती है जिसे हम बोलते हैं सी स्टाइल, तो वो हम कल पढ़ेंगे। यहाँ पर एक चीज और मैं बताऊंगा, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर आपने बोला था स्टार्टिंग में कि जैसे सी में हेडर फाइल होती हैं वैसे ही जावा में पैकेज होते हैं, और पैकेज के अंदर क्लासेस होती हैं और क्लासेस के अंदर मेथड्स। लेकिन सी में तो हम पैकेज को लिखते हैं सब टॉप ऑफ द क्लास, यहाँ तो हम वो हेडर फाइल्स को लिखते हैं टॉप ऑफ द क्लास, लेकिन यहाँ तो हमने पैकेज लिखा ही नहीं, जबकि हमने सिस्टम एक प्री डिफाइंड क्लास यूज करी है जो कि किसी ना किसी पैकेज में है। तो क्वेश्चन यही होगा कि सर ये जो सिस्टम है ये किस क्लास के
में होती है? तो द आंसर इज दैट सिस्टम क्लास इज java.lang. It is the default package. You need not to write that package in your program. आपको इस पैकेज को अपने प्रोग्राम में लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये एक डिफॉल्ट पैकेज होता है और जो सिस्टम क्लास होती है वो java.lang नाम के पैकेज के अंदर ही होती है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम जावा के प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे की चीजें सीखेंगे कि क्या स्टाइल होती है जावा की और किस तरीके से जावा को में किस तरीके की प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच।